Welcome back, students, for the second part of India 16. Today, we will move forward towards the remaining portion of the Indias. We will try to understand that what are the other requirements of this Indias. All right. So, let's move forward. Now, as you can see on my screen, we have question number 3 that we'll be solving. Right. So, if I would request you to please pause this video and read this question yourself once and then resume the video while we are solving it together. All right. So now, students, let's look at the question. It says that on 1st of April 2001, Sun Limited purchased land for $10 million. So Sun Limited, they have purchased a land for $10 million, and the date of purchase is 1st of April 2001. And this $10 million includes $1 million legal cost, right, in order to construct a new factory. Now, students, we know that the purchase cost for anything is included in the cost of PP&E, right? And legal cost also forms part of direct attributable cost, and hence 1 million will also be included. And hence this 10 million will be forming part of cost of asset. Now, construction work commenced on 1st of May 2001. So this is an important pointer. When did the construction started? It started on 1st of May 2001, after 1 month of acquisition of land. Sun Limited incurred the following costs in relation with its construction. So following are the costs which have been incurred by Sun Limited, starting with the preparation and leveling of land. So these are the costs which we have incurred for the preparation and leveling of land, and hence will be included in the cost of asset. Purchase of material for the construction, this will also form part of your cost of asset. Employment cost for the construction workers is 2 lakh per month. Now remember, this will be charged in the cost of asset for the time of production, for the period of production. So when did our production started? The production started on 1st of May. So we would have to remember that the production started on 1st of May. So while solving the question in exams, you can just prepare a timeline in your answer sheet somewhere in the right side of the notebook. Okay, so that you remember that the construction started on 1st of May. Now, employment costs, since are given in per month basis, and hence needs to be included basis the number of months for which the construction went on. Now, overheads cost incurred directly on the construction. Now, please remember, overhead costs are not included in the cost of asset, but are included if they are direct. General overhead costs are not included, but direct are included. Now, the question here tells you direct overhead costs. So it means they will be also be included. But here, students, in this question, it has been mentioned that it is also on per month basis. So, of course, here as well, the number of months which took the building to get completed will be important. Now, the next item is ongoing overhead cost allocated to the construction project using company's normal overhead allocation model. Now, we know that general overheads are not part of the cost of asset, and hence this will not be considered. These are your ongoing overhead cost allocated. So direct overhead cost we include, but any allocated overhead costs will be general overheads only and will not be included in the cost of asset. Now, students, the next thing is income received during the temporary use of factory premises as a car park during the construction period. So in the previous video, we noted that this is an incidental operations, and they do not have any regards with respect to the direct. They are not directly related to the asset, right? So since they are not directly related to the asset, and hence they are not included in the cost of asset. So this income will not be used to be reduced from the cost of asset. But if you would have incurred any expenses, those expenses will not be considered as a cost of asset because these are incidental operations. So in yesterday's video, in previous video, we confirmed, we discussed it, that incidental operations do not form part of cost of asset. Now, students, next portion is cost of relocating employees to work to at the new factory. So we also discussed it yesterday that these do not form part of your cost of asset. The relocation costs, they are not considered as cost of asset. Then cost of opening ceremony, these are also not considered. This is not related to my PPN. Now, next one is the factory was completed on 30th of November. So when did we start? We start on 1st of May, and the factory got completed on 30th of November. Beta, how much period has been elapsed since the start of production until the end of production? It is 7 months. So 7 months लगे हैं आपको बिल्डिंग बनाने के लिए. अगर 7 months आपको लगे हैं बिल्डिंग बनाने के लिए, तो आपकी जो डायरेक्ट कॉस्ट है, जैसे कि आपकी जो लेबर है, वो आपकी कितने मंथ्स के लिए इंक्लूड होगी? 7 मंथ्स के लिए. फिर आपके जो डायरेक्ट ओवरहेड्स हैं वो भी कितने मंथ्स के लिए इंक्लूड होंगे? 7 मंथ्स.
ठीक है। फिर बेटा इसमें क्या लिखा हुआ है आगे, दैट साथ साथ इन्होंने ये भी लिखा है कि ये सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम है एज पर इंडिया 23 मीन्स अगर ये सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम है तो आपको जो बोरिंग कॉस्ट है जो आपने इंकर की है इस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए वो भी आप कॉस्ट में ऐड करोगे। दिस इज एज पर एस 23। disclaimer again that when you will be able to relate to this when you have covered India's 23। so now क्योंकि सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम में कवर होता है तो ये जो आपकी बोरिंग कॉस्ट होंगी वो आपकी कंसिडर की जाएगी। अब बेटा आगे क्या दिया हुआ है, एंड प्रोडक्शन बिगेन ऑन 1 February 2002। now there is a gap between production and your completion, so this production will have impact over depreciation calculation. Right now, it does not have any impact on the question because we are not discussing depreciation here. We are just discussing the cost of the asset. Now, students, आगे क्या लिखा हुआ है? At the end of 40-year period, Sun Limited has legally enforceable operation. So ultimately, what it is trying to tell you that 40 years is the useful life of building. इसमें बोला है कि 40 साल बाद सन लिमिटेड हैज अ लीगली एनफोर्सेबल ऑब्लिगेशन टू डिमोलिश द फैक्ट्री, फैक्ट्री को आपको डिमोलिश करना होगा एंड रीस्टोर द साइट टू द ओरिजिनल कंडीशन, और ओरिजिनल कंडीशन में साइट को रीस्टोर करना है। द डायरेक्टर्स एस्टिमेट दैट द कॉस्ट ऑफ डिमोलिशन इन 40 years टाइम बेस्ड ऑन द प्राइसेस प्रिवेलिंग एट द टाइम विल बी 20 million। आपको 40 साल बाद जो आपको खर्चा करना पड़ेगा डिमोलिशन के लिए वो कितना है बेटा, 20 लाख। तो ये क्या है बेटा आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ साइट रिस्टोरेशन कॉस्ट और डिसमेंटलिंग कॉस्ट इज वेल। नाउ दिस इज डिसमेंटलिंग, डिमोलिशन इज डिसमेंटलिंग कॉस्ट, दिस इज नॉट साइट रिस्टोरेशन, दिस इज डिसमेंटलिंग कॉस्ट। डिसमेंटलिंग कॉस्ट भी आपकी प्रेजेंट वैल्यू पर कॉस्ट ऑफ एसेट में इंक्लूडेड होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान है। थर्ड पॉइंटर जब हमने पढ़ा था उसके अंदर थर्ड पॉइंटर जो आपका डिमोलिशन का भी है, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू आप निकाल कर कॉस्ट में ऐड करो, क्योंकि 20 million आपका 40 साल बाद इंकर होगा तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल कर आपको करना होगा। तो प्रेजेंट वैल्यू को लगभग चाहिए होगा डिस्काउंट रेट। वो आगे पढ़ते हैं। आगे का बोला एन एनुअल रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट विच इज अप्रोप्रिएट टू दिस प्रोजेक्ट इज 8%। तो 8% के हिसाब से 40 साल बाद आपको 20 लाख रुपए पे करने हैं, तो 8% के हिसाब से आपको उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होगी। तो आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर चाहिए, या तो आप कैलकुलेटर पर इसको कैलकुलेट कर लो, बट इन्होंने क्वेश्चन आसान बनाने के लिए आपको क्या बोला है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 पेबल इन 40 years टाइम, 40 साल बाद जो आपको ₹1 पे करना है उसकी करंट वैल्यू कितनी है, 8% के हिसाब से 0.046। तो इसका मतलब क्या है, 20 million को अगर आप 0.046 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो उसकी आपकी प्रेजेंट वैल्यू निकल जाएगी। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिमोलिशन कितनी होगी बेटा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिमोलिशन होगी आपकी 20 million इंटू 0.046 which will calculated, okay। Now the construction of the factory was partly financed by loan। अब ये क्यों इन्फॉर्मेशन आ रही है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या लिखा होता है, सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम है, क्योंकि सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम एज पर इंडियस 23 में आपको बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करने के लिए बोलते हैं। तो बोरिंग कॉस्ट को आप कैपिटलाइज करोगे, कितने मंथ के लिए कैपिटलाइज करोगे ये मैं आपको बता देता हूँ, 7 months के लिए आप कैपिटलाइज करोगे, बिकॉज बोरिंग कॉस्ट आपकी जो कैपिटलाइज होती है वो स्टार्ट डेट ऑफ कमेंसमेंट, जिस दिन से आपने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया उस दिन से आप कमेंस कर सकते। The construction of the factory was partly financed by a loan of 17.5 million taken out on 1st of April 2001। The loan was at annual rate of interest of 6%। Sun Limited received investment income of 1 lakh on the temporary investments of the proceeds। Compute the cost of factory to be capitalized। Now बेटा आपका लोन पे जो इंटरेस्ट है वो कितना कैपिटलाइज होगा, 17.5 आपके लोन की कॉस्ट है, 6% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और 7 months के लिए आपका कितना कॉस्ट आ जाएगी लोन की, 7/12। तो ये आपकी बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज जाएगी। तो ये जो आपकी अमाउंट आएगी ये भी आपकी कॉस्ट ऑफ एसेट में इंक्लूड हो। ओके बेटा, तो बेटा आई विल बी गोइंग ओनली ऑन ओनली स्क्रीन मोड नाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, just give me a minute so that I can also present I can also present notes section to solve this question with you together। So I'll open one note as well। This is our third question where we'll be solving it। Okay, I hope you are able to see it properly। तो बेटा कैसे सॉल्व करेंगे, सेम मेथड हम फॉलो करेंगे इसके अंदर भी। आप क्वेश्चन को करते जाओ साथ साथ, जो यहाँ पे राइट साइड में आपको आ रहा है, और साथ साथ लिखते जाओ। ठीक है, तो सेम वही आपको मैं इसी तरह से समझा रहा हूँ ताकि आप एग्जाम में क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन
ओहो, जस्ट अ मिनट बेटा। बेटा एक मिनट में इसको रिजॉल्व करता हूँ इशू को ना। अच्छा बेटा, ये सॉल्व हो गया मैटर। नाउ लेट्स रिज्यूम सॉल्विंग आवर क्वेश्चन। ठीक है। सो इसमें क्या है, इसमें क्या है बेटा कि आपको क्वेश्चन जो है वो हम सेम मेथड पे फॉलो करेंगे जो हम जैसे हमने कल किए थे। हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ओके। सो आपका हम लिखेंगे एग्जाम शीट में बीच में आंसर टू क्वेश्चन 3। नाउ आपको हमेशा आंसर न्यू पेज से स्टार्ट करना है। नाउ बेटा आपका क्या क्वेश्चन है, ये किसकी बुक्स हैं, ये बुक्स ऑफ अनलिमिटेड। नाउ आपको क्या निकालनी है, कॉस्ट ऑफ, कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री। आप ये फॉर्मेट बना लो। ओके। नाउ इसमें क्या है बेटा, पहला आपका है प्रिपरेशन, सॉरी, परचेज ऑफ लैंड। परचेज ऑफ लैंड, और इसमें आपका इंक्लूडिंग आपको इंक्लूडिंग आपको इसमें लीगल कॉस्ट लेना है, बिकॉज लीगल कॉस्ट इज ऑल्सो योर कॉस्ट ऑफ एसेट, इंक्लूडिंग लीगल कॉस्ट। बेटा इसमें आपकी जो कॉस्ट है वो कितनी है, 1 मिलियन। सो बेटा आपका ये 1 मिलियन कितना हो जाएगा रुपीज़ इन लैक्स में, अगर हम इसको ले रहे हैं तो दिस 1 मिलियन वुड बी योर इन लैक्स। तो हम लैक्स में लिख लेते हैं, क्वेश्चन ईजी हो जाता है थोड़ा सॉल्व करना। सो आपका जो 1 मिलियन अमाउंट है वो हो जाएगा बेटा टेन, 10 लैक्स। ठीक है। नाउ अच्छा 10 मिलियन है तो बेटा आपका ये 100 लैक्स हो जाएगा। 10 मिलियन इज योर, 1 मिलियन इज योर 10 लैक्स। तो 10 मिलियन इज इक्वल टू 100 लैक्स और 1 करोड़। सो लैक्स में अगर लिखना है तो 100 लिखना होगा अपने को। नाउ प्रिपरेशन एंड लेवलिंग ऑफ लैंड इज 3 लैक्स। सो प्रिपरेशन एंड लेवलिंग ऑफ लैंड हो जाएगा बेटा आपका 3 लैक्स। फिर है बेटा आपका मटेरियल परचेज। तो परचेज ऑफ मटेरियल, इन्होंने कुछ आपको abnormal वेस्टेज वगैरह तो कुछ दिया नहीं है, तो हमें पूरा का पूरा लेना है ये 6.08। अच्छा बेटा ये मिलियन में गिवन है, इसमें आप कंफ्यूज मत हो ना। अब मिलियन और ये क्वेश्चन आपको प्ले कर रहा है, वो मिलियन में वैल्यू दे रहा है और लैक्स में वैल्यू दे रहा है, तो 6.08 मिलियन कितना होगा बेटा आपका, 60.8 लैक्स। ठीक है। फिर आपकी बेटा एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट कितनी है, एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है बेटा आपकी, एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है, कितनी होगी बेटा आपकी, कितने मंथ्स आपका प्रोडक्शन हुआ है, कंस्ट्रक्शन हुआ है, 7 मंथ्स का। तो आपको जो कॉस्ट लिखनी होगी, एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट लिखनी होगी, कितनी होगी, 7 इंटू 2, क्योंकि लैक्स में हम ले रहे हैं। 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा बेटा आपका, 14 लैक्स। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं बेटा, ओवरहेड्स भी आपको लेने होंगे। डायरेक्ट ओवरहेड आपका फॉर्म ऑफ कॉस्ट ऑफ पार्ट बनते हैं। डायरेक्ट ओवरहेड्स हैं आपके बेटा कितने, 1 मिलियन पर मंथ है, तो 7 मिलियन आपकी डायरेक्ट ओवरहेड्स हो जाएगी। फिर बेटा इसके अंदर आगे क्या है आपका, ओवरहेड कॉस्ट। तो एलोकेटेड ओवरहेड्स हम एलोकेट नहीं करते हैं, तो एलोकेटेड ओवरहेड्स आपके एलोकेट नहीं होंगे, नील हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है बेटा आपका, इंसिडेंटल इनकम। बेटा इनकम इंसिडेंटल ऑपरेशन से जो इनकम आती है, इंसिडेंटल इंसिडेंटल ऑपरेशंस इनकम, बेटा ये जो इनकम होगी ये भी आपकी कॉस्ट मेथड नहीं बनेगी। फिर बेटा इसके आगे क्या है आपके पास, कॉस्ट ऑफ रिलोकेटिंग एम्प्लॉयज, ये भी आपकी कॉस्ट नहीं बनेगी, और कॉस्ट ऑफ ओपनिंग सेरेमनी ये भी नहीं बनेगी। तो बस हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको क्लियर रहे, कॉस्ट ऑफ रिलोकेशन एंड ओपनिंग सेरेमनी, ये भी आपकी कॉस्ट नहीं बनेगी। तो बेटा आगे बढ़ते हैं, इसमें इस पे क्या बोला है,
फैक्ट्री वॉज कंप्लीटेड ऑन 30th नवंबर। 30th नवंबर को आपकी फैक्ट्री कंप्लीट हो गई है, और आपको वो बोरिंग कॉस्ट के लिए बोल रहा है बेसिकली। तो बोरिंग कॉस्ट भी आपका सब्सटेंशियल, क्योंकि सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम है कंस्ट्रक्शन का, तो बोरिंग कॉस्ट को आप कैपिटलाइज कर सकते हो। तो बोरिंग कॉस्ट की आपकी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। बेटा बोरिंग कॉस्ट कितनी आएगी आपकी? बोरिंग कॉस्ट आएगी बेटा आपकी, जो हमने नीचे पढ़ी थी, ये आएगी आपकी 17.5 मिलियन डॉलर्स का लोन है। अगर आपका 17.5 मिलियन डॉलर्स का लोन है, तो बेटा आपका ये जो लोन हो जाएगा वो हो जाएगा 175 लैक्स का। 175 लैक्स का लोन है बेटा। तो और इसमें आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, और आपने कितने मंथ्स का रेट आपको कैपिटलाइज करना है? ये करना है आपको 17/12। तो ये आपका कैलकुलेशन आपको करना होगा। ठीक है, तो उसका आप फटाफट से कैलकुलेशन कर लो। 17.775 into 0.06 is your interest rate, and into your 7 months divide by बेटा 12। तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो आपका एक्सपेंस है, जो बोरिंग कॉस्ट को आपको कैपिटलाइज करना है, वो 6.125। तो बेटा ये आ जाएगा आपका 6.125 लैक्स। तो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है इसके अंदर, और आपका ये हमने लोन ले लिया, फिर आपके जो ये प्रोविजन बनेगा, प्रोविजन फॉर डिमोलिशन। तो डिमोलिशन का प्रोविजन हमने समझ लिया था बेटा। आपको कितनी कॉस्टिंग करनी है? 220 मिलियन की। 20 मिलियन कितना हो गया बेटा आपका? 200 लैक्स। 200 लैक्स को आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 0.046। ठीक है, तो इसकी भी कैलकुलेशन आप हाथ के हाथ कर लो बेटा। 200 इंटू 0.046, तो ये हो जाएगा आपका 9.2। तो आपको 9.2 लैक्स का आपको बेटा डिमोलिशन का प्रोविजन भी रिकॉर्ड करना है। ठीक है, लास्ट आप तक और कुछ और तो नहीं है, सारा क्वेश्चन कंप्लीट है, तो उसके आप कॉस्ट को कैलकुलेट कर लो। लेट मी जस्ट टेक अ कैलकुलेटर। बेटा ये हो जाएगा आपका 100 + 3 + 60.8 +14 + 7 +6.125 +9 टोटल हो गई बेटा आपकी कॉस्ट 200.125। थोड़ा सा गैप आ रहा है 1 लाख का, जस्ट लेट मी लुक एट इट। बेटा हमने एक चीज़ छोड़ दी है। वी हैव वी डिड नॉट कंसिडर दी इन्वेस्टमेंट इनकम। सो जो बोरिंग कॉस्ट पे आपको इन्वेस्टमेंट इनकम आएगी बेटा, वो भी तो हमें रिड्यूस करनी होगी ना। सो अगर आप पढ़ेंगे यहाँ पर, सो इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है द कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री वॉज पार्टली फाइनेंस्ड बाय लोन। द लोन वॉज एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 6%। सन लिमिटेड रिसीव्ड इन्वेस्टमेंट इनकम ऑफ 1 लाख रुपीज। अगर आपने 1 लाख रुपीज की इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीव भी किया इस लोन पे, तो बेटा ये आपके लोन की कॉस्ट से माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास बोरिंग कॉस्ट जो आएगी बेटा आपको -1 करके आएगी। ठीक है, -1 करके आएगी, तो बेटा ये कितना हो जाएगा आपका? 5.125। बेटा अगर ये 5.125 होगा, तो आपकी जो कॉस्ट आएगी बेटा वो आएगी 199.125। तो ये बेटा आपकी कॉस्ट आएगी। ये जो क्वेश्चन सॉल्व है यहाँ पर बुक में, इट हैज बीन सॉल्व्ड यूजिंग थाउजेंड्स। तो इसलिए ये थोड़ा सा डिफरेंट आपका आंसर यहाँ पे दिखेगा आपको, बट अगर आप इसको थाउजेंड्स को लैक्स में कन्वर्ट करोगे तो इट विल बी द सिमिलर अमाउंट। सो सिर्फ यहाँ पर जो हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट इनकम को अर्न किया है, if you have earned investment income, so it will form part of your borrowing cost. It will be reduced from your borrowing cost. So this is also as per the provisions of India's 23, that your आपके जो इंटरेस्ट इनकम आप अर्न करते हो ऑन अनयूटिलाइज्ड फंड्स,
that will be reduced from the borrowing, that will be reduced from the borrowing cost, and hence we have reduced it from the finance cost or borrowing cost to be capitalized. ओके, नाउ बेटा आगे बढ़ते हैं। अम, इसमें और अब हम आगे बढ़ेंगे तो बेटा इसके अंदर क्या है, अब अपन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है विच इज मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट। बेटा जो आगे आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट। तो बेटा मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट में क्या कवर होगा? मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट में हम ये समझेंगे कि, जस्ट अ मिनट लेट मी एडजस्ट, या सो मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट में बेटा हम ये समझेंगे कि अ, अगर आपकी पेमेंट जो होती है वो डेफर्ड होती है बियॉन्ड नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स, तो उस केस में आप कॉस्ट को कैसे मेजर करोगे? मीनिंग जैसे कि आपका जो क्रेडिट पीरियड, नॉर्मल क्रेडिट पीरियड है, वो कितना अलाउड है? नॉर्मल क्रेडिट पीरियड अलाउड है बेटा आपको, नॉर्मल क्रेडिट पीरियड है 1 और 2 मंथ्स का है। ओके, बट सप्लायर जो है आपको वो क्रेडिट पीरियड दे रहा है, वो ज़्यादा क्रेडिट पीरियड दे रहा है। इट इज़ गिविंग यू अ क्रेडिट पीरियड ऑफ से 2 ईयर्स। तो ये जो 2 ईयर्स का क्रेडिट पीरियड है वो आपको इजीली तो मतलब फ्री में तो देगा नहीं, उसके लिए क्या करेगा? पैसा ज़्यादा चार्ज करेगा। अब ये जो पैसा ज़्यादा चार्ज होगा वो किस में चार्ज होगा? जो आपने पेमेंट करनी है, जो आपने परचेज प्राइस पे करना है। तो जो आप परचेज प्राइस पे करेंगे बेटा, उसके अंदर ये इंटरेस्ट एलिमेंट भी होगा जो आपको वो एक्स्ट्रा क्रेडिट पेड दे रहा है। तो स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि जब आपके पास पेमेंट डेफर्ड होती है बियॉन्ड नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स, मतलब अगर आपके नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स 2 मंथ्स है और जो सप्लायर है वो आपको बोल रहा है कि आप 2 साल में पेमेंट कर देना, तो ये आपकी पेमेंट डेफर हुई है बियॉन्ड नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स। तो उस केस में हम क्या करते हैं? if the payment for PPN is deferred beyond normal credit terms, then the PPN is recognized at cash value. तो आप PPN को किस पे रिकॉर्ड करते हो? कैश वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हो। एंड डिफरेंस बिटवीन द कैश प्राइस एंड द टोटल पेमेंट इज रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरेस्ट ओवर क्रेडिट पीरियड। और जो आपका डिफरेंस होता है दोनों में, कैश प्राइस में और टोटल पेमेंट में, वो कैसे रिकॉग्नाइज होता है? एज एन इंटरेस्ट ओवर क्रेडिट पीरियड। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि हमारे पास अगर पेमेंट जो होती है वो डेफर हो रही है टुवर्ड्स नॉर्मल क्रेडिट टर्म, इन दैट केस we will consider the difference between the cash price and the total payment that we have to make as an interest cost, and we will only consider the cash price of the asset to be recorded as an asset. Okay, so we will be only considering the cash price of the asset to be recorded as an asset. Now हो सकता है क्वेश्चन में आपको कैश प्राइस निकालना पड़े या क्वेश्चन आपको कैश प्राइस ऑलरेडी दे। दैट इज बोथ सिचुएशंस आर पॉसिबल। So beta, let's look at this question number 4, which is also from study material. So let's solve it together. So here if you will see, beta, here if you will see, so here what is happening is, um, the on 1st of April 2001, on 1st of April 2001, an item of property is offered for sale at 10 million rupees. So प्रॉपर्टी जो है वो 10 मिलियन रुपीस की जो है वो सेल हो रही है, विद द पेमेंट टर्म्स बीइंग 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, और वो पेमेंट जो कि वो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट होगी, विच इज 33.33 lakhs over a 2 years period. Now you remember also here is also playing with your numbers. Here the amount is given in million, but the payment is giving in absolute numbers. And if you look at it carefully, it's the same thing. 10 million is equal to 100 lakhs, and payment of 33.33 lakhs per year will total out to be 10 million 100 lakhs rupees, or 10 million rupees. Now, being 3 equal installments of 33.33 lakhs over a 2 years period. Now, this payment will be done in 3 equal installments over a 2 years period. Means that you will make payment of 33.33 lakhs on 1st of April. So जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके 2 साल का पीरियड है, ठीक है, तो एक पेमेंट इंस्टॉलमेंट आप यहाँ करोगे बिगिनिंग ऑफ दी, जब आपने एसेट को परचेज किया है, तो एक पेमेंट आप द एंड ऑफ ईयर 1 में करोगे और एक पेमेंट आप एट द एंड ऑफ ईयर 2 पे करोगे। तो आपका टोटल मिला के कितना हो जाएगा बेटा? 100 lakhs approximate. Now, implicit rate of interest is 5.36% per annum. Pass necessary journal entries for recording the property in accordance with Ind AS 16. Now, क्या हो रहा है यहाँ पर? आपका पेमेंट जो हो रही है वो डेफर हो रही है बियॉन्ड नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स, एंड हेंस यू वुड हैव टू रिकॉर्ड इट एट कैश प्राइस। नाउ कैश प्राइस आपको यहाँ पे गिवन नहीं है क्योंकि आपको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट गिवन है। सो इंडिकेटिव क्या है ये? दैट आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है इन सारी पेमेंट्स की। तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल कर आप इसको सॉल्व करोगे। इसको हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। तो हम क्या करेंगे बेटा? 5.36% पर एनम यूज करके आप एक
प्रेजेंट वैल्यू निकाल लोगे। सो जो आपकी पेमेंट जीरो पीरियड पे हो रही है उसकी प्रेजेंट वैल्यू तो सेम ही होगी। फिर आपकी जो पेमेंट ईयर एंड वन पे होगी उसके लिए आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लोगे। और ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे निकलता है बेटा, एसएफएम में आप पढ़ेंगे वैसे। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो ईयर वन का होगा वो होगा 1/1 प्लस डिस्काउंट रेट रेज टू द पावर नंबर ऑफ ईयर्स। ये आपका ऐसा डिस्काउंट रेट निकलता है। तो मतलब अगर आपको ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ ईयर वन निकालना है तो वो क्या होगा, 1/1.0536 रेज टू द पावर वन। सिमिलरली ईयर टू का बेटा आप निकालोगे तो ईयर टू का रेट होगा आपका 1/1.0536 रेज टू द पावर टू। दैट्स हाउ यू कैलकुलेटेड। सो आपका ईयर वन का जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इतना है, टू का इतना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे आपकी प्रेजेंट वैल्यू निकल जाएगी। तो प्रेजेंट वैल्यू बेटा आपकी कितने निकल कर रही है इस एसेट की, 95 लैक्स। सो आप इस एसेट को कितने अमाउंट पे रिकॉर्ड करोगे, 95 लैक्स पे रिकॉर्ड करोगे। ठीक है। सो आपकी जो स्केड्यूल ऑफ पेमेंट पे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा साथ साथ, बिकॉज आप ये क्या है, एक टाइप से लोन हो गया, उसने आपको लोन दिया है, तो आपकी जो ओपनिंग वैल्यू होगी लोन की वो कितनी होगी, 95 - 33, बिकॉज इतना तो आप रिसीव कर ही लोगे ना, इतना तो आप सॉरी पे कर ही लोगे, तो आपको पेबल बैलेंस कितना होगा एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर वन, वो होगा 95 - 33 विच इज 61.66। फिर आपका इंटरेस्ट कॉस्ट जो कैलकुलेट होगा बेटा, ये इंटरेस्ट कॉस्ट एट द रेट ऑफ 5.36% पे कैलकुलेट होगा। ये सिंपल आपके स्केड्यूल्स हैं जो हमारे बनते हैं, हर एक स्टैंडर्ड में बनेंगे। यहाँ पर जब आप डिस्काउंटिंग करोगे वहाँ पर आपको एक शेड्यूल भी क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें एक ओपनिंग बैलेंस होगा, उसके बाद एक उसमें इंटरेस्ट कॉस्ट रिकॉर्ड होगी। इंटरेस्ट कॉस्ट कैसी होगी, ओपनिंग बैलेंस मल्टीप्लाइड बाय योर इंटरेस्ट रेट, देन आप पेमेंट करोगे एट द एंड ऑफ द ईयर 33 की। तो क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकल कर आएगा बेटा, अगर ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, तो क्लोजिंग बैलेंस होगा ए प्लस बी माइनस सी। सो आपका क्लोजिंग बैलेंस एट द एंड ऑफ ईयर वन इतना होगा। फिर आपकी बिगनिंग ऑफ द ईयर वन में टू में आपका ये सेम बैलेंस हो जाएगा, इंटरेस्ट कॉस्ट रिकॉर्ड करोगे आप और पेमेंट आप इतने की करोगे तो ये क्लोजिंग जीरो हो जाएगा। तो आपकी जो जर्नल एंट्रीज बेटा पोस्ट होंगी कैसे कैसे होंगे, फर्स्ट अप्रैल 2001 को आपकी एंट्री पोस्ट होगी, प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट 95 लैक्स टू कैपिटल क्रेडिटर आप रिकॉर्ड करोगे 61 का और बाकी आप पेमेंट कर दोगे। से ईयर एंड वन पे कितनी पे एक्सपेंस आपको रिकॉर्ड करना होगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस, ये कहाँ से आएगा बेटा, आपकी इस कैलकुलेशन से है। तो आपको इंटरेस्ट एक्सपेंस टू कैपिटल क्रेडिटर, देन ईयर एंड टू पे भी इंटर सॉरी ईयर एंड टू पर, ईयर एंड वन पर ही आपको पेमेंट भी करनी है 33 लैक्स की, तो आप पेमेंट करोगे तो आपका क्रेडिटर कम होगा। तो ये बेटा आपका हो जाएगा 33.33 लैक्स, ये भी आ जाएगा 33.33 लैक्स। नाउ नेक्स्ट आपकी एंट्री क्या होगी, ईयर एंड टू पे। ईयर एंड टू पे बेटा आप दोबारा से इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड करोगे कितना, 1,69,465 का। ये अप्रोक्सीमेशन के लिए थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है, इट शुड बी सेम ओनली। सो इट शुड बी ईयर 169,465। एंड देन लास्ट में बेटा आप इसकी पेमेंट कर दोगे 33 लैक्स 33,000 ये आपकी पेमेंट हो जाएगी। ठीक है। So these are the journal entries that you will post in case of payment deferred beyond normal credit terms. All right. तो बेटा अब हम नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, एक और टॉपिक हम ले रहे हैं विच इज एक्सचेंज ऑफ एसेट्स। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे बेटा कि अगर आप पीपीएनई को एक्वायर कर रहे हो बाय एक्सचेंजिंग योर एसेट्स, देन हाउ विल यू रिकॉर्ड इट। तो सिंपल है, इसमें आपका जो रूल है वो क्या है कि आप जो एसेट एक्वायर कर रहे हो इट शुड बी मेजर्ड एट फेयर वैल्यू। जो आपने एसेट एक्वायर किया है वो किस पे आप रिकॉर्ड करोगे, फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे, अनलेस अनलेस क्या है कि एक्सचेंज ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस। जैसे कि मानो आपने एक लैंड को एक्सचेंज करके आपने एक शिप को परचेज किया है, ठीक है। तो ये बार्टर सिस्टम में आपने एक्सचेंज किया है, मतलब आपने कोई पेमेंट नहीं किया है। तो इस केस में जो आप शिप को एक्वायर कर रहे हो इसको किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे, तो वो हम डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम बेटा हम क्या बोलेंगे, द एक्सचेंज ऑफ एसेट्स शेल बी मेजर्ड एट फेयर वैल्यू, मींस शिप विल बी मेजर्ड एट फेयर वैल्यू अनलेस दिस ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस। मतलब इस ट्रांजैक्शन में कोई कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, इट इज प्योरली डन टू मैनिपुलेट द अकाउंट्स। If it has commercial substance, then it will be recorded at fair value. Second thing is fair value of the asset given up or asset acquired cannot be measured reliably. So अगर आप इन दोनों में से किसी भी fair value को जो आपने given up है या जो आपने acquire किया उसको आप easily measure नहीं कर सकते हो, तब आप उसको
फेयर वैल्यू पे मेजर नहीं करोगे। अगर आप फेयर वैल्यू पे मेजर नहीं करोगे तो बेटा किस पे करोगे? आप मेजर करोगे उसको कॉस्ट ऑफ एसेट गिवन अप। मीन्स आप उसको किस पे मेजर करोगे? अगर आपने लैंड को ट्रांसफर करके शिप लिया है तो यू विल मेजर इट कॉस्ट ऑफ एसेट गिवन अप विच इज कॉस्ट ऑफ लैंड इन योर बुक्स। ठीक है, दिस इज द होल पॉइंट। नो बेटा, फेयर वैल्यू में भी एक आपको प्रेफरेंस दी गई है कि फेयर वैल्यू आप कौन सी यूज करोगे। सबसे पहले हम किसकी फेयर वैल्यू यूज करेंगे बेटा? सबसे पहले हम यूज करेंगे फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप। अब हम गिवन अप क्यों ले रहे हैं? बच्चों को इसमें डाउट आता है कि भाई हम गिवन अप क्यों ले रहे हैं। नॉर्मल जो इंस्टिंक्ट हमें ये बोलते हैं कि जो एसेट हम एक्वायर कर रहे हैं उसकी फेयर वैल्यू को यूज कर रहे हैं। बट यहाँ पर क्या है, स्टैंडर्ड ने आपको बोला है कि फेयर वैल्यू एसेट गिवन अप आपको लेनी है फर्स्ट। अगर प्रेफरेंस आपकी वो होगी अगर दोनों फेयर वैल्यूज अवेलेबल है। इसका रीजन ये है सिंपल बेटा कि फेयर वैल्यू मेजरमेंट एक जो कॉन्सेप्ट है वो एक फेयर वैल्यू का कॉन्सेप्ट जो एसेट स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है। तो अगर मैं एसेट को मतलब मैं एसेट को ट्रांसफर कर रहा हूँ, मतलब इफ आई एम ट्रांसफरिंग द एसेट टू एक्वायर समवन एल्स, सो मेरे मेरे लिए जो एसेट मैं गिव अप कर रहा हूँ उसकी फेयर वैल्यू निकालना ज़्यादा आसान है बिकॉज वो एसेट को मैं ओन करता हूँ रादर देन उसकी फेयर वैल्यू निकालना जो दूसरा बंदा ओन करता है। तो मेरे लिए फेयर वैल्यू ऑफ लैंड निकालना ज़्यादा आसान होगा बिकॉज मेरे पास इसके सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है इन कंपेरिजन टू फाइंडिंग आउट द फेयर वैल्यू ऑफ शिप। सो इट इज बेसिकली do the concept of ease which we मतलब द स्टैंडर्ड ने क्या सोचा है, स्टैंडर्ड ने क्या लॉजिक लगा के इसको सोचा होगा कि दैट लैंड की वैल्यू निकालना जो एसेट को एक्सचेंज करा जो उसके लिए आसान है रादर देन फाइंडिंग आउट द फेयर वैल्यू ऑफ शिप। तो इसलिए हम फर्स्ट प्रेफरेंस उसको दे रहे हैं यहाँ पर, फेयर फर्स्ट प्रेफरेंस दे रहे हैं हम फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन अप। फिर बेटा इसके अंदर अगर आपने कुछ कैश को पे भी किया है, अगर आपने कैश पे भी किया है अपार्ट फ्रॉम लैंड आपने देने के अलावा आपने कुछ कैश भी पे किया है तो वो आपकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा ऑफ द एसेट एक्वायर्ड। और अगर आपने कुछ कैश को रिसीव किया है तो आपकी कॉस्ट से लेस हो जाएगा। सिमिलरली सेकंड प्रेफरेंस क्या होगी आपकी? अगर ऑफ कोर्स लैंड की फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो आपको फेयर वैल्यू तो मेजर करना है, तो सेकंड प्रेफरेंस होगी बेटा शिप की फेयर वैल्यू को यूज करके आप इसकी अकाउंटिंग करो। तो सेकंड प्रेफरेंस क्या है? फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट एक्वायर्ड प्लस कैश पेड ऑफ कोर्स माइनस कैश रिसीव। अगर इन दोनों में से फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है या फिर आपकी जो एक्सचेंज ट्रांजेक्शन है इट लैक्स कमर्शियल ऑप्शन, तो आप बेटा उसको किस पे रिकॉर्ड करोगे? आप उसको रिकॉर्ड करोगे कॉस्ट ऑफ एसेट गिवन अप प्लस वही कैश पेड। अगर आपने कुछ पैसा पे किया है तो आप उसको ऐड कर दोगे कॉस्ट ऑफ एसेट में और कैश रिसीव्ड को आप माइनस कर। इसका लॉजिक सिंपल है, अगर आप कुछ पेमेंट कर रहे हो तो आपकी कॉस्ट है इसलिए आपकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगी, अगर आपको कुछ रिसीव हो रहा है एक्सचेंज करते हुए आपका वो कॉस्ट से माइनस हो जाएगी। बेटा ये वाला जो पोर्शन है ये मैंने आपको सिर्फ रीडिंग के लिए दिया है, आप इसको एक बार रीड कर सकते हो कि अगर एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है तो उसके क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। बेटा अगर फिर एक इसमें एक बहुत लोगों का डाउट आता है कि सर अगर फेयर वैल्यू क्यों हम यूज़ नहीं करते हैं अगर कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है? देखो फेयर वैल्यू तो आपको दोनों केसेस में मिल जाएगी चाहे आपका कमर्शियल सब्सटेंस है चाहे नहीं है। बट इसलिए हम यूज़ नहीं कर रहे हैं बिकॉज ये जो कमर्शियल सब्सटेंस अगर लैकिंग है, इफ कमर्शियल सब्सटेंस लैकिंग देन द ट्रांजैक्शन को हम अज्यूम कर लेते हैं, स्टैंडर्ड अज्यूम कर लेता है कि द ट्रांजैक्शन इज डन टू मैनिपुलेट अकाउंट्स। तो इसलिए हम जब हमारी एक कमर्शियल सब्सटेंस absent होता है तो हम उसको फेयर वैल्यू पे एसेट्स को रिकॉर्ड नहीं करते। तो क्वेश्चन आपको बताएगा कि कमर्शियल सब्सटेंस absent है। ओके, और एक हमने ये क्वेश्चन भी यहाँ पर लिखा हुआ है, आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम्पल फ्रॉम आईसीएस एजुकेशन स्टडी मटेरियल। आप इसको भी बेटा रीड करके देख सकते हो, इसमें आपको ये समझ आएगा कि किन किन केसेस में आपका कमर्शियल सब्सटेंस जो होता है वो नहीं अवेलेबल होता है। दिस इज जस्ट फॉर रीडिंग पर्पसेस ऑल्दो नॉट रेलिवेंट फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव एज सच। सो आप इसको रीड कर सकते हो एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। नाउ बेटा हम एक क्वेश्चन करते हैं हम इसके अंदर, ये आपका स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है जहां पर हम ये डिस्कशन करेंगे कि आप अगर एक्सचेंज कर रहे हो एसेट्स का तो उसको आप कैसे रिकॉर्ड करोगे। तो एक नहीं बल्कि दो क्वेश्चन हैं, जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो है ये दोनों आपके एक्सचेंज ऑफ एसेट्स से रिलेटेड है। ओके, सो वी विल फॉलो द सेम ड्रिल। We will open the, I will go on only screen mode and I will present my notes file, OneNote file along with this PDF so that you can both see, you can see both of these files on my screen.
Okay, beta. Let's start our question. So it says here, question number 5 we are reading. So Pluto Limited owns land and building which are carried in its balance sheet in an aggregate carrying amount of 10 million rupees. So प्लूटो ने क्या किया हुआ है बेटा? प्लूटो के पास लैंड एंड बिल्डिंग है, ठीक है, जिसने उसकी बुक्स में जो कैरिंग वैल्यू है उसकी कितनी है? 10 million rupees, और यू कैन से 1 crore और 100 lakh rupees. Okay. The fair value of such asset is 15 million rupees. Let's not look at lakhs because everything is given in million, so कोई issue नहीं है. Now fair value of such asset is 15 million. Carrying value is 10 million. Fair value is 15 million. It exchanges the land and building for a private jet. अब आपने इसको एक्सचेंज करके क्या रिसीव किया है? जेट रिसीव किया है. और जेट की जो फेयर वैल्यू है बेटा वो कितनी है? 20 लाख है, सॉरी 20 million है. एंड उसने एडिशनल कैश $3 million भी पे किया है. Apply necessary provisions of India 16 for the above transaction and pass journal entries for the same. Now बेटा इसके अंदर आपको क्या करना है? सिंपल है. अगर आप इसको क्वेश्चन को देखेंगे, इट्स अ सिंपल क्वेश्चन. या, सो let's solve it. So answer to question 5. तो यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ एसेट्स हो रहा है, तो आपको तीन चीजें चाहिए. कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट सोल्ड, एसेट गिवन अप, कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप, बिकॉज वो हमारे लिए रेलिवेंट है. तो कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप कितनी है बेटा इस क्वेश्चन में आपके लिए? वो है 10 million. फिर फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप कितनी है बेटा? तो हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस होती है. फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप हमें गिवन है, तो फिर हमें उसी को यूज करना है. फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप बेटा 15 million. और आपने कैश भी पे किया है, तो कैश आपने कितना पे किया है बेटा? $3 million, 3 million rupees. सो अगर आप इसकी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे? आप रिकॉर्ड करोगे जेट को, जेट अकाउंट डेबिट, और आप उसको कितने पे रिकॉर्ड करोगे? फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप प्लस कैश पे. तो 15 प्लस 3 पे रिकॉर्ड करोगे विच इज 18. ठीक है बेटा. आपने जो सेल किया है उसकी कैरिंग वैल्यू कितनी है लैंड एंड बिल्डिंग की? तो लैंड एंड बिल्डिंग की कैरिंग वैल्यू कितनी है आपकी? $10 million. तो आपने $10 million का एक्सचेंज किया है एसेट को, और उसके बदले एक जेट को खरीदा है जिसकी फेयर वैल्यू $18 million है. ठीक है. तो बेटा आपने इसमें कैश भी पे किया है. कितना कैश पे किया है आपने? $3 million का. तो अल्टीमेटली बेटा आपने 13 lakhs पे किए हैं फॉर ऑप्टेनिंग एन एसेट जिसकी कॉस्ट 18 lakhs है. ठीक है, 18 million है, सॉरी. तो ये आपकी जो रुपीज हैं वो मिलियन में है. आई एम सॉरी, पार्डन मी फॉर द रॉन्ग यूनिट्स. सो आपकी जेट अकाउंट जो है बेटा वो $18 million का आपने जेट को खरीदा है, जिसकी वैल्यू जेट की $18 million है. बट उसके लिए आपने क्या पे किया है? आपने $10 million की आपने लैंड एंड बिल्डिंग को उसके लिए पे किया है, और $3 million का बेटा आपने कैश पे किया है. तो आपको बेटा आपने $13 million के एसेट्स को पे किया है फॉर ऑप्टेनिंग 13 million पे किया है फॉर ऑप्टेनिंग एन एसेट जिसकी फेयर वैल्यू 18 million rupees है. तो बेटा आपको गेन हो रहा है, गेन ऑन सेल हो रहा है कितना? 5 million. वाई? बिकॉज टू एक्वायर अ जेट जिसकी आपकी वैल्यू 18 है. 18 हमने कैसे निकाली? हमने फेयर वैल्यू को उसको निकाला. और फेयर वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? फेयर वैल्यू की एसेट गिवन अप प्लस कैश पेड. तो आपकी जो फेयर वैल्यू है जेट की वो हमने कितनी मानी? 18 मानी. 18 आपकी जेट की वैल्यू है, फेयर वैल्यू है. और आपकी लैंड इन बिल्डिंग जो है बेटा उसकी बुक वैल्यू कितनी है? 10. आपने 3 का कैश पे किया है, तो 13 आपकी कॉस्ट हो गई और आपका 5 का गेन हो गया ऑन सेल. ठीक है, सिंपल. और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा. तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? इट सेज दैट, ये भी स्टडी मेटेरियल का क्वेश्चन है एंड इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन. ओके, इसमें हम दोनों एंटिटीज में की बुक्स में एंट्रीज देखेंगे कैसे पोस्ट होंगी. तो सन लिमिटेड एक्वायर्ड अ मशीनरी फ्रॉम अर्थ लिमिटेड इन एक्सचेंज फॉर अ फ्लैट. बेटा ये स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन जो है आपका मैंने बोरो किया है इंडेस 38 से. इंडिया 38 में जो एक्सचेंज ऑफ एसेट्स है वहां पर भी कॉन्सेप्ट डिस्कस हुआ था.
होगा, मतलब हम करेंगे, बट क्योंकि इस क्वेश्चन में आप दोनों की बुक्स के अकाउंट्स की एंट्री देख पा रहे हो, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर कवर कर लिया है। और ऑफ कोर्स इंडेक्स 38 पढ़ाते हुए उसमें हम इसको बस ये बोल देंगे कि हमने वहाँ पर रेफर किया हुआ है, सेम कॉन्सेप्ट वहाँ पर भी यूज होता है। बट ये अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा, तो इसलिए मैंने आपको इंडेक्स 60 में पढ़ा रहा हूँ। सन लिमिटेड एक्वायर्ड अ मशीनरी फ्रॉम अर्थ लिमिटेड इन एक्सचेंज फॉर अ फ्लैट। तो सन लिमिटेड एक पार्टी है बेटा आपकी, और एक आपकी है अर्थ लिमिटेड। सन लिमिटेड ने क्या दिया है, एक एसेट दिया है। एसेट क्या है बेटा आपका, वो मशीनरी। और रिसीव क्या किया अर्थ लिमिटेड से, फ्लैट। ठीक है। अब क्या लिखा है, फ्लैट इज कैरिड एट $5 लाख इन द बुक्स ऑफ सन लिमिटेड। अच्छा बेटा, इसने मशीनरी को एक्वायर किया, ये उल्टा हुआ है। ये इसने मशीनरी को एक्वायर किया है और फ्लैट को दिया है। अच्छा बेटा, फ्लैट की कैरिंग वैल्यू कितनी है बुक्स ऑफ सन लिमिटेड, वो है बेटा ₹5 लाख। ये हमारे लिए सफिशिएंट है। फिर इसकी जो बेटा मशीनरी की जो कैरिंग वैल्यू है अर्थ की बुक्स में, ये कैरिंग वैल्यू क्यों गिवन है, क्योंकि हमें दोनों की बुक्स की एंट्रीज करनी है, तो ये कितनी है बेटा, ₹10,000। नाउ विच इज नॉट एट द फेयर वैल्यू, ऑफ कोर्स ये फेयर वैल्यू तो नहीं होगी। पास ये जनरल एंट्रीज इन द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द बुक्स ऑफ सन लिमिटेड एंड अर्थ लिमिटेड। फेयर वैल्यू ऑफ द मशीनरी इज 5 लाख, तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। फेयर वैल्यू ऑफ द मशीनरी इज 520। तो बेटा ये इसकी फेयर वैल्यू जो है मशीनरी की, वो कितनी गिवन है हमें, 5,20,000। एंड फेयर वैल्यू ऑफ द फ्लैट इज $5 लाख, ₹5 लाख। ठीक है। तो अब हमें इसकी एंट्रीज पोस्ट करनी है। देखो बेटा, सिंपल सा है, जिसकी बुक्स में आप एंट्री पोस्ट कर रहे हो उसके हिसाब से आप एसेट गिवन अप देखोगे। ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर हम आप आंसर, आपका आंसर टू क्वेश्चन 6 ले रहे हैं। ठीक है। तो अब आप पहले एंट्रीज किसकी बुक्स में पोस्ट कर रहे हैं, हम सन लिमिटेड की बुक्स में पोस्ट कर रहे हैं। ठीक है। और पहले सन लिमिटेड के हिसाब से समझते हैं। तो सन लिमिटेड ने बेटा क्या किया है, सन लिमिटेड ने फ्लैट को दिया है, फ्लैट को दिया है। और फ्लैट की फेयर वैल्यू कितनी है, 5 lakhs। तो जो हम मशीनरी को रिसीव कर रहे हैं, उसकी वैल्यू को हम किस पे रिकॉर्ड करेंगे, वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप। ठीक है। कैश में कोई पेमेंट नहीं हुई है, तो आपकी मशीनरी की वैल्यू क्या होगी, इस केस में जो रिकॉर्ड होगी वो कितने पे होगी बेटा, वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप। वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप क्या है, मशीनरी के लिए फ्लैट। तो फ्लैट आपने दिया है, फ्लैट की वैल्यू कितनी है, 5 lakhs। तो आप कितने पे रिकॉर्ड करोगे मशीनरी को, 5 lakhs पे। फिर बेटा आपने जो एसेट को दिया है वो क्या है, फ्लैट ही है, और इसकी जो बुक वैल्यू है वो कितनी है, 5 लाख है। तो फिर हमारा कोई गेन और लॉस नहीं हो। ये हमने मशीनरी को किस पे लिखा है, वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप। गिवन अप क्या है, फ्लैट, फ्लैट की फेयर वैल्यू कितनी है, फेयर वैल्यू लिख लो यहाँ पर आप, फेयर वैल्यू कितनी है बेटा, 5 लाख। फिर अगर हम अर्थ लिमिटेड की बात करें, तो बेटा अर्थ लिमिटेड ने क्या दिया है, मशीनरी को दिया है। तो जो अर्थ लिमिटेड रिसीव क्या कर रहा है, फ्लैट, तो फ्लैट को रिकॉर्ड करेगा वो, और मशीनरी को क्रेडिट करेगा। बेटा अब जो ये अर्थ लिमिटेड है वो किस पे रिकॉर्ड करेगा, वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप। तो अर्थ लिमिटेड ने कौन सा एसेट दिया, मशीनरी दिया। मशीनरी की वैल्यू कितनी है बेटा, फेयर वैल्यू 5,20,000। तो अर्थ लिमिटेड कितने पे रिकॉर्ड करेगा, कितने पे, 5,20,000 पे। बेटा मशीनरी की बुक वैल्यू कितनी है, मशीनरी की बुक वैल्यू तो बुक्स में 10,000 ही है, तो आपको गेन हो रहा है बेटा। आपने 10,000 के अगेंस्ट 520 का एसेट रिसीव कर लिया, तो गेन ऑन सेल हो जाएगा। गेन ऑन सेल कितना हो रहा है बेटा आपका, 5,10,000। तो ये आपका हो गया बेटा पहला पार्ट। सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है, सेम सिचुएशन में यहाँ पे बना लेते हैं, सन लिमिटेड। अच्छा यहीं पे कर लेते हैं यार, फिर आपको अम, दोबारा से टाइम लगेगा, 3 पार्ट्स हैं, आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। सो बेटा अब यहाँ पर क्या है, सेकंड क्वेश्चन में, फेयर वैल्यू ऑफ मशीनरी इज नॉट मेजरेबल। तो फेयर वैल्यू ऑफ मशीनरी इज नॉट मेजरेबल, तो इसमें हम क्या कर देते हैं, पर नील ये कर देते हैं, फेयर वैल्यू मेजरेबल नहीं है, एन ए हो जाएगा। और however the flat is similar flat is transacted in another company at 4,90,000। तो यहाँ पर यहाँ क्या आएगा बेटा आपका, 4.9 lakhs। ठीक है। तो अभी वही हमें सेम मेथड यूज करना है। तो अब क्या करोगे आप, सेकंड पोर्शन में आप क्या करोगे बेटा,
Let's see if it works. I can copy this. अच्छा, कॉपी नहीं हो रहा है, चलो छोड़ो। सेकंड पार्ट करते हैं बेटा। सनलिमिटेड के बुक्स में आप कैसे रिकॉर्ड करोगे? दोबारा से आते हैं। सनलिमिटेड के बुक्स में आपको मशीनरी रिकॉर्ड करनी है। मशीनरी किस पे रिकॉर्ड होगी? एस फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप। फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप क्या है बेटा? फ्लैट। आपने फ्लैट दिया तो फ्लैट की फेयर वैल्यू कितनी है? 4.9। आप 4.9 पे रिकॉर्ड करो। तो आपकी बेटा कॉस्ट क्या है फ्लैट फ्लैट की? आपकी बुक्स में कॉस्ट कितनी है? 5 लैक्स। तो 5 लैक्स का आप हटाओगे उसको, तो आपका लॉस हो जाएगा बेटा यहाँ पर, लॉस ऑन एक्सचेंज। बेटा यहाँ पे सेल नहीं आएगा, आपको यहाँ पर भी एक्सचेंज लिखना है। लॉस ऑफ एक्सचेंज कितना आ जाएगा बेटा? 10,000। नाउ आपका जो अर्थ लिमिटेड है बेटा, अर्थ लिमिटेड के केस में क्या है? आपको फ्लैट रिकॉर्ड करना है। फ्लैट किस पे रिकॉर्ड होगा? वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप। गिवन अप क्या है बेटा यहाँ पर हमारा? मशीनरी। मशीनरी की फेयर वैल्यू तो अवेलेबल नहीं है। अगर फेयर वैल्यू मशीनरी की अवेलेबल नहीं है तो हम किसकी फेयर वैल्यू लेंगे? नाउ वी विल टेक फेयर वैल्यू ऑफ एसेट रिसीव्ड। फेयर वैल्यू ऑफ एसेट रिसीव्ड, ये तो हमने पढ़ा था कि फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है। अगर वो वैल्यू में है तो दूसरे की फेयर वैल्यू लिखनी है। तो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट रिसीव कितनी है बेटा? 4,90,000 ही है। रिसीव क्या किया आपने? फ्लैट ही रिसीव किया, तो उसकी फेयर वैल्यू आप रिकॉर्ड कर लोगे। आपके बुक्स में इसकी मशीनरी की कॉस्ट कितनी है बेटा? 10,000। तो आपका गेन ऑन सेल कितना आ जाएगा? गेन ऑन एक्सचेंज कितना आ जाएगा बेटा? 4,80,000। ठीक है। थर्ड जो है आपका, थर्ड सिचुएशन वो और सिंपल है। इसमें थर्ड में क्या बोला हुआ है? नाइदर द फेयर वैल्यू ऑफ मशीनरी नॉट द फ्लैट कुड बी रिलायबली मेजर्ड। अगर दोनों की फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो दोनों के बुक्स में जो एसेट रिकॉर्ड होंगे वो उनकी कॉस्ट पे रिकॉर्ड होंगे, कॉस्ट ऑफ एसेट गिवन अप। ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ एसेट गिवन अप में मशीनरी डेबिट तो फ्लैट। फ्लैट की हमारी कॉस्ट कितनी है बेटा? 5 लैक्स है। तो 5 लैक्स पे आप मशीनरी को रिकॉर्ड करोगे और फ्लैट को आप 5 लैक्स से ही कम करोगे, तो आपका यहाँ पर कोई भी गेन ऑन एक्सचेंज नहीं आएगा। फिर यहाँ पर बेटा आप फ्लैट को जब रिकॉर्ड करोगे तो ये आप किस पे रिकॉर्ड करोगे? कि फेयर वैल्यू अवेलेबल है तो कॉस्ट ऑफ एसेट गिवन अप। कॉस्ट ऑफ एसेट गिवन अप कितनी है? 10,000। तो आप 10,000 पे फ्लैट को रिकॉर्ड करोगे और टू मशीनरी 10,000। यहाँ पे हम 10,000 इसलिए ले रहे हैं बेटा क्योंकि कॉस्ट ऑफ एसेट गिवन अप लेना पड़ता है हमें, अगर हमारे पास कुछ भी गिवन नहीं है तो। फेयर वैल्यू गिवन नहीं है तो हमारी जो कॉस्ट ऑफ एसेट है कितनी है? मशीनरी 10,000 है। एंड द रिमेनिंग अमाउंट जो है बेटा आपका कहीं भी नहीं जाएगा, कुछ बैलेंस वगैरह है ही नहीं। ठीक है। ये आपका रिकॉर्डिंग हो गई। ओके। नाउ बेटा अब हम सब्सिक्वेंट मेजरमेंट पे आएंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको पढ़ते हैं। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। Yeah. Now let's look at how you will subsequently record a property, plant and equipment. Okay. Subsequently में बेटा क्या होगा? सब्सिक्वेंटली में हम ये देखेंगे कि सब्सिक्वेंटली आप एसेट को कैसे रिकॉर्ड करोगे। मतलब अभी आपने इनिशियल रिकॉर्ड कर लिया कॉस्ट पे, आपने उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, उसके बाद सब्सिक्वेंटली आप उस एसेट को किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे। तो देयर आर टू मेथड्स अवेलेबल। ऑल्दो आई थिंक आप ये पढ़ के भी आए होंगे इंटर से, बट स्टिल वी विल डिस्कस इट, और इसमें आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा समझने में। तो पहला मेथड क्या है आपका? पहला है बेटा एट कॉस्ट। सिंपल है, आप कॉस्ट पे रिकॉर्ड करो। कॉस्ट में आप अगर आप रिकॉर्ड करते हो एसेट को सब्सिक्वेंटली, तो आप कैसे उसको रिकॉर्ड करोगे? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस। ये इम्पेयरमेंट लॉस किससे आएगा बेटा? इंड एस 36 से आएगा। वहां पर इसका हम इम्पेयरमेंट करेंगे अगर हमें जरूरत है। तो एट सब्सिक्वेंट मेजरमेंट एन एंटिटी शैल चूज कॉस्ट मॉडल और इवैल्यूएशन मॉडल एज इट्स अकाउंटिंग पॉलिसी। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट एंड ये इंपॉर्टेंस आपको तब समझ आ जाएगी जब हम इसकी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी को डिस्कशन करेंगे इंड एस 8 में। ठीक है।
तो इंडिया स्टेट में बेटा आपका चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्कशन होता है, और अगर आपका अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज होता है तो उसको हम कैसे इम्पैक्ट करते हैं, कैसे रिकॉर्ड करते हैं, रेट्रोस्पेक्टिवली। सो अगर आप अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर रहे हो, मींस अगर आप एसेट को कॉस्ट की बजाय रिवैल्यूएशन पे रिकॉर्ड कर रहे हो, रिवैल्यूएशन में कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर रहे हो सब्सिक्वेंटली, मतलब आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर रहे हो, तो उसको आप एज एन रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज करोगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सिक्वेंट मेजरमेंट पे एंटिटी को चूज करना है आइदर कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल। नाउ this choosing of cost model or evaluation model is basically it's an accounting policy choosing. So it's a as its accounting policy for a class of property plant and equipment. हर एक क्लास के लिए आप चूज कर सकते हो। क्लास मतलब जिसमें आपके करेक्टरिस्टिक्स सिमिलर हैं एसेट। कॉस्ट पे अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हो बेटा तो सिंपल क्या है, आपको कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस पे रिकॉर्ड करना है। अगर रिवैल्यूएशन मॉडल पे आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो आप फेयर वैल्यू लोगे एट द रेट ऑफ रिवैल्यूएशन, एंड उसके बाद आप सब्सिक्वेंट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस सब्सिक्वेंट एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस। आप सोच रहे हो सर फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड कर लिया तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्यों आ रहा है? बेटा ये तब उस केस सिनेरियोज में आता है जहां पर ये फेयर वैल्यू जब जिस दिन आपने रिवैल्यू कर लिया उसके बाद फेयर वैल्यू आपको पता नहीं लग पा रही है, तो आप उसी फेयर वैल्यू को रिकॉर्ड करते रहोगे जो आपकी प्रीवियसली आपने उसको यूज किया है वैल्यू करने के लिए, उस फेयर वैल्यू को आप यूज करते रहोगे। टाइमलाइन के हिसाब से देख लो, आपने इस दिन फेयर वैल्यू किया एसेट को, एंड ऑफ द ईयर वन फॉर एग्जांपल, अब एंड ऑफ द ईयर टू पे आपको फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है एसेट की, तो आप किस पे रिकॉर्ड करो, उसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे। बट यहाँ पर आप क्या करोगे बेटा, इस वाली फेयर वैल्यू को यूज करके ही फेयर वैल्यू एट द एंड ऑफ ईयर वन को यूज करके रिकॉर्ड करोगे, इसमें से आप सब्सिक्वेंट डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे फिर आप, एंड सब्सिक्वेंट इनकम, इसलिए यहाँ पर सब्सिक्वेंट वर्ड यूज किया गया। बेटा अब रिवैल्यूएशन की फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है, देखो रिवैल्यूएशन की फ्रीक्वेंसी होती है आपकी एनुअली, अगर आपकी जो फेयर वैल्यू है वो बार बार चेंज हो रही है ना, बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होती है तो, और उसमें फ्रीक्वेंटली चेंज होने में सिग्निफिकेंट एंड वॉलेटाइल चेंजेस होते हैं। और अगर आपकी जो फेयर वैल्यूज हैं वो सिग्निफिकेंटली एंड वॉलेटाइल चेंजेस उसमें नहीं होते, तो उस केस में आप इसको इन 2 ईयर्स 2 to 5 ईयर्स में रिकॉर्ड करो, 2 to 5 ईयर्स में रीवैल्यू करोगे। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवैल्यूएशन का क्या कॉन्सेप्ट है बेटा, इंडियस बोलता है कि अगर आपकी जो फेयर वैल्यू है वो वॉलेटाइल है और सिग्निफिकेंट चेंजेस आ रहे हैं फ्रॉम प्रीवियस ईयर, तो आप उसको किस पे रिकॉर्ड करोगे बेटा, उसको आप हर साल फेयर वैल्यू करके रिकॉर्ड करोगे। और अगर आपकी फेयर वैल्यू जो है उसमें सिग्निफिकेंट और वॉलेटाइल चेंजेस नहीं है हर साल, तो आप उसको किस पे रिकॉर्ड करोगे, आप उसको पिछले साल की फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर सकते हो, मीनिंग यू कैन डू रिवैल्यूएशन बिटवीन 3 to 5 ईयर्स, 2 to 5 ईयर्स। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट में भी जहां पर आपका फेयर वैल्यूएशन चेंजेस जो है वो सिग्निफिकेंट और वॉलेटाइल नहीं है, ये वाला एग्जांपल उसमें भी फिट हो जाएगा कि फेयर वैल्यू आप पिछले साल की यूज करोगे, तो इसलिए आपको यहाँ पे सब्सिक्वेंट डेप्रिसिएशन और सब्सिक्वेंट इंपेयरमेंट लॉस माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि आप फेयर वैल्यू ईयर एंड टू पे निकाल रहे हो, आप ईयर एंड वन की फेयर वैल्यू को यूज करके इसको फेयर वैल्यू रिवैल्यूएशन मॉडल में रिकॉर्ड कर। आई होप आई हैव ट्राई टू मेक इट सिंपल फॉर यू, बट स्टिल इन केस एनी डाउट्स प्लीज गो टू कमेंट सेक्शन, लेट मी नो। नाउ बेटा ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस और डेफिसिट। नाउ अब अगर आप रिवैल्यूएशन करोगे तो ऑफ कोर्स आपको कोई गेन या लॉस तो आएगा ही, राइट? तो उस केस में हम उसको कैसे डील करेंगे? ओके, उस केस में रिवैल्यूएशन गेन और लॉस को आप कैसे डील करोगे उसको समझते हैं। ओके, सो अगर आपका बेटा फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन हो रहा है, तो आपका जो फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन हो रहा है तो उस केस में जो आपका ट्रीटमेंट है वो डिफरेंट है, और अगर आपका जो रिवैल्यूएशन है वो सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन हो रहा है तो उस केस में आपका ट्रीटमेंट डिफरेंट है। बेटा अगर आप फर्स्ट टाइम रिवैल्यू कर रहे हो और अगर आपको सरप्लस हो रहा है, अगर आपको फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन पे सरप्लस हो रहा है तो वो कहाँ रिकॉर्ड होता है बेटा, वो रिकॉर्ड होता है ओसीआई में, और अगर आप ओसीआई में रिकॉर्ड करते हो तो अल्टीमेटली इट इज रिकॉर्डेड इन रिवैल्यूएशन रिजर्व्स। बट बेटा अगर आपका रिवैल्यूएशन जो है वो डेफिसिट में आ रहा है, मतलब फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन में अगर आपको डेफिसिट आ रहा है, तो आप उसको कहाँ रिकॉर्ड करोगे, उसको आप पीएनएल पे रिकॉर्ड करोगे। ठीक है सर, इसको हम ओसीआई में क्यों रिकॉर्ड करते हैं बेटा, ओसीआई में इसलिए रिकॉर्ड करते हैं ताकि आपका पीएनएल जो है वो बार बार वॉलेटाइल ना हो जाए, मतलब पीएनएल जो है हर साल चेंज ना हो। पीएनएल पीएनएल को स्टेबल रखने के लिए जितने भी आपके रिवैल्यूएशन सरप्लसेस होते हैं उनको हम ओसीआई में रिकॉर्ड करते हैं। बट क्योंकि आपके जो ये डेफिसिट है उसको प्रूडेंट कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम पीएनएल में रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, सो दिस इज जस्ट टू मेक श्योर दैट द पीएनएल जो है आपका वो वॉलेटाइल शो ना, तो इसलिए आप उसको ओसीआई में रिकॉर्ड करते हो अंटिल द एसेट इज सोल्ड। सेकंड रीजन, दीज आर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स। रिवैल्यूएशन के जो आपके प्रॉफिट्स होते हैं एसेट्स के वो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स होते हैं।
ठीक है। नाउ बेटा अगर आपका सेकंड रिवैल्यूएशन हो रहा है, सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन हो रहा है, देन फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन, मतलब सब्सिक्वेंटली आप कोई भी रिवैल्यूएशन कर रहे हो तो उसके में डिफरेंट थोड़ा सा ट्रीटमेंट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। नाउ डेफिसिट अगर आपका हुआ है सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन में, अगर आप सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन में बेटा डेफिसिट हुआ है, तो उस केस में बेटा आप पहले ये देखोगे कि क्या इससे पहले जो आपके रिवैल्यूएशन हुए हैं उसमें डेफिसिट हुआ था या उस केस में हमारा सरप्लस हुआ था। अगर उस केस में हमारा डेफिसिट ही हुआ था, अगर उस केस में हमारा डेफिसिट हुआ था तो आप कहाँ चले जाओगे, एसपीएल में चले जाओगे, क्योंकि डेफिसिट हुआ था पिछले साल में, इस साल भी डेफिसिट हो रहा है तो आप पीएनएल में रिकॉर्ड करना है। बट अगर पिछले साल आपका बेटा ओसीआई मतलब आपने सरप्लस रिकॉर्ड किया हुआ है, प्रीवियस आपने सरप्लस रिकॉर्ड किया हुआ है, तो पहले आप जो डेफिसिट है, जो इनिशियल डेफिसिट है, जितना आपने रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट किया हुआ है, उतना आप क्या करोगे, उसको रिवैल्यूएशन रिजर्व से एडजस्ट करोगे डेफिसिट को, और रिमेनिंग डेफिसिट को आप पीएनएल में लेकर जाओगे। सिंपल है, लॉजिकल भी है, क्योंकि एसेट को आपने ऑलरेडी पहले सरप्लस रिवैल्यू किया हुआ है और अब उसकी वैल्यू में डिक्लाइन आ रहा है, तो जितना आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व का बैलेंस अभी तक बचा हुआ है आपके पास, उतना आप डेफिसिट उससे एडजस्ट कर दो, बाकी डेफिसिट को आप पीएनएल में रिकॉर्ड कर दो। अगर पिछले सालों में आपका रिवैल्यूएशन करते हुए सरप्लस हुआ ही नहीं है कभी, तो ऑफ कोर्स आपको डेफिसिट को इस साल भी पीएनएल में लेकर जाना पड़ेगा। सेम कॉन्सेप्ट बेटा आपका सरप्लस पे भी लगेगा। सरप्लस में अगर पिछले साल में आपका सरप्लस और इस साल भी सरप्लस है, तो आप कहाँ जाओगे बेटा, ओसीआई में जाओगे। प्रीवियसली सरप्लस एज वेल, तो आप उसी में जाओगे। अच्छा, पिछले साल में आपका डेफिसिट था बट इस साल सरप्लस हो रहा है, पिछले साल में आपका डेफिसिट था, इस साल सरप्लस हो रहा है, तो पिछले साल तक का डेफिसिट जो है बेटा, उतना सरप्लस आप पीएनएल में रिकॉर्ड कर दोगे ताकि वो नेट ऑफ हो जाए, बाकी आप ओसीआई में ले जाओगे। तो प्रीवियसली डेफिसिट लेस जो आपका था, अप टू प्रीवियस डेफिसिट इज रिकॉर्डेड इन एसपीएल एंड बैलेंस इन। अच्छा, इसको सर एक बार एग्जांपल देकर समझा दो बेटा, बहुत जरूरी है, एग्जांपल समझ आपको इजीली आ जाएगा। देखो, आपका एक एसेट था 10,000 का कॉस्ट, उसको आपने फर्स्ट टाइम रिवैल्यू किया, और जो आपने फर्स्ट टाइम बेटा उसको रिवैल्यू किया, तो उस पर आपने डेफिसिट रिकॉर्ड किया, और आपने उसको 5,000 पे रिकॉर्ड करके 5,000 का डेफिसिट रिकॉर्ड कर लिया, 5,000 का लॉस हो गया आपको। ठीक है। नाउ सेकेंड ईयर में क्या हुआ, ये 5,000 से आपका ये एसेट बढ़ के कितना हो गया बेटा, 12,000 हो गया फॉर एग्जाम्पल। स्टैंडर्ड बोलता है कि ये 5,000 से जब तक आप 10,000 पे जाओगे, तो इतना जो आपका गेन है बेटा, ये आप किस में, क्योंकि आपने ये पीएनएल में रिकॉर्ड किया हुआ है पिछले साल, तो आप इसको पीएनएल में रिकॉर्ड करो। बेटा इसके ऊपर जो है आपका गेन 2,000 को, वो कहाँ चला जाएगा, ओसीए में चला। अगर आप इसको ऐसे बना के देखोगे तो बहुत सिंपल लगेगा। ठीक है, सिमिलरली एक और एग्जांपल ले लो। 10,000 का आपका एसेट की कॉस्ट थी। ठीक है, 10,000 की एसेट की कॉस्ट को आपने पिछले साल में बेटा रीवैल्यू करके 12,000 कर लिया, और आपने 2,000 का गेन कहाँ रिकॉर्ड कर दिया, ओसीआई में रिकॉर्ड कर दिया। अब इसमें बेटा डेफिसिट हो रहा है, इस साल में डेफिसिट हो रहा है, और नेक्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में डेफिसिट हो रहा है, और इसकी वैल्यू बेटा कितनी हो गई, 7,000 हो गई। तो बेटा इसमें 5,000 जो आपका ये गैप है 5,000 का, वो 2,000 का जो डेफिसिट है वो कहाँ चला जाएगा, ओसीआई में रिकॉर्ड हो जाएगा, अगर 2,000 का डेफिसिट रिवैल्यूएशन सरप्लस में बचा हुआ है, क्योंकि वो यूज भी हो सकता है, वो हम आगे समझेंगे, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो बैलेंस बचा हुआ है रिवैल्यूएशन सरप्लस का, उसमें से एडजस्ट हो जाएगा, और बाकी जो है बेटा आपका 3,000 का लॉस, वो कहाँ चला जाएगा, पीएनएल में चला जाएगा। तो आप इसको इस तरीके से बनाकर देखोगे तो बहुत आसान लगेगा कि इतना तो मेरा मेरा ओसीआई में गया, तो इतना तो मैं ओसीआई में लेके जाऊंगा, बाकी मैं पीएनएल। ठीक है बेटा। सर ये और बता दो, ये क्लास ऑफ पीपेनी का क्या मतलब है। बेटा क्लास ऑफ पीपेनी का यही मतलब है सिंपल सा, कि जितने भी आपके प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है जिनके करेक्टरिस्टिक सेम है, उसको हम सिमिलर क्लास बोलते हैं। जैसे कि अगर इवन आपकी जो लैंड है, ओके, लैंड के अगर पर्पस डिफरेंट है, एक का पर्पस जो है लैंड का वो क्या है, बिल्डिंग बनाने के लिए यूज होना, एक का पर्पस जो है लैंड का माइनिंग करने के लिए यूज होना है ना, और एक पर्पस जो है लैंड का, वो थर्ड पर्पस है सेलिंग का। तो ये वाली लैंड तो बेटा आपकी इन्वेंट्री हो जाएगी, ये वाली बेटा लैंड जो है आपकी माइनिंग और बिल्डिंग वाली, ये दोनों की डिफरेंट क्लासेस हो जाएंगी, बिकॉज बिल्डिंग का पर्पस डिफरेंट होता है, माइनिंग का पर्पस डिफरेंट होता है, तो इनके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिफरेंट है। तो करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे आप क्लास ऑफ पीपेनी डिटरमाइन करते हो, और आपको जो ये मेथड चूज करना होता है सब्सिक्वेंट वैल्यूएशन पे, कॉस्ट और रिवैल्यूएशन मॉडल का मेथड, ये आपको क्लास ऑफ पीपेनी के लिए सेम रखना है। It is possible that a particular asset class might, a particular asset, for example land, building, machinery, can have multiple classes of ppn, multiple classes. Okay, now beta इसके अंदर हम एक और क्वेश्चन करेंगे, then we will end today's class. So last next question है बेटा आपका, just give me a moment, I will go off video.
नाउ इसमें आप बेटा पढ़ोगे, इसमें क्या है, इसमें है, लेट्स रीड द क्वेश्चन। वीनस लिमिटेड, अ लार्ज मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप, is a large manufacturing group. It owns a considerable number of industrial buildings. इसके पास काफ़ी सारी industrial buildings हैं, such as factories हैं, warehouses हैं, office buildings and several capital cities. The industrial buildings are located in industrial zones. ये बेटा आपका क्लास ऑफ यूपीएनए का क्वेश्चन है बेसिकली। वेयर एज दी ऑफिस बिल्डिंग्स आर इन सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ सिटीज। ऑफिस बिल्डिंग आपकी बेटा सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स में है, और बेटा आपकी जो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स है वो आपकी इंडस्ट्रियल जोन्स में है। Venus Limited management wants to apply India 16 revaluation model to subsequent measurement of the office building, but continue to apply a historical cost model to the industrial buildings. Analyze the accounting treatment to be applied by the management in light of India 16। बेटा अगर आपको क्लास ऑफ पीपीएनए का कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो आप बोलोगे सर कि ये तो हमारी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, ये तो हमारी बिल्डिंग्स हैं। अगर बिल्डिंग्स हैं बेटा तो सर हमारी तो क्लास सेम है, तो हमें तो सेम मॉडल यूज करना है। नहीं बेटा, बट अगर आप ध्यान से पढ़ोगे जो मैंने आपको बताया है कि अगर आपके करेक्टरिस्टिक्स जो हैं उस एसेट के, उन उस एसेट की मतलब क्लास क्या होते हैं जब उनके करेक्टरिस्टिक्स सेम होते हैं। तो यहाँ पर बेटा क्या हो रहा है कि इंडेक्स आपको क्लास बाय क्लास रिवैल्यूएशन करने के लिए अलाउ करता है, या रिवैल्यूएशन में कॉस्ट मॉडल अलाउ करने के लिए अलाउ करता है। तो बेटा यहाँ पर, बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपके पास जो बिल्डिंग्स हैं उसमें आपके फैक्ट्रीज हैं, यहाँ पर आपके वेयर हाउसेज हैं, और यहाँ पर बेटा आपकी ऑफिस बिल्डिंग्स भी हैं। तो इन तीनों का जो नेचर है बेटा वो डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है सर? सर फैक्ट्रीज जो है बेटा आपकी, ये आपकी किसी और लोकेशन पे लोकेटेड है, वेयर हाउसेज बेटा आपके कहीं और लोकेटेड होंगे, और ऑफिस बिल्डिंग्स आपकी सेंट्रल सिटी में लोकेटेड है। तो इसलिए इनके जो क्लासेस हैं वो डिफरेंट है, एंड हेंस यू कैन अप्लाई रिवैल्यूएशन सेपरेट मॉडल्स, वैल्यूएशन मॉडल्स फॉर फैक्ट्रीज, वेयर हाउसेज एंड ऑफिस बिल्डिंग्स, बट आपको डिस्क्लोजर देना होगा। हाउएवर जो आपकी बिल्डिंग्स होंगी विद इन ऑफिस बिल्डिंग, उनका आपका जो वैल्यूएशन होगा वो सेम मेथड पे होगा। सिमिलरली जो आपकी फैक्ट्री बिल्डिंग्स होंगी, इंडस्ट फैक्ट्री जो आपकी फैक्ट्रीज हैं उसके अंदर जो डिफरेंट फैक्ट्रीज हैं उन सबका मेथड बेटा आपका सेम मेथड होना चाहिए। However, for different characteristics of buildings, for example, factories, for warehouses, and for office buildings, you can use different method for valuation. Okay, perfect. Let me know, beta, if you have any doubts in comment section. And थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे। आई होप आपके डाउट्स मैं क्लियर कर पाया हूँ और आपके कॉन्सेप्ट्स को मैं अच्छे से बिल्ड करवा पा रहा हूँ। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं बेटा तो प्लीज़ कंटिन्यू लर्निंग फ्रॉम दीज क्लासेस। आई विल कीप अपलोडिंग फॉर द एंटायर इंडिया सिलेबस in the YouTube section. So if you are a learner and you are liking my videos, so it's a good idea that you go for these videos. These are free of cost available as of now, and the PDFs, if you want, you can let me know. You can message me, you can message your contact number in the comment section, or you can message your mail ID and I will send you across. All right, with this, thank you everyone for joining in. Have a good day.